go to the other book, which is Power of the Subconscious Mind. एंड उसमें हमने 7 चैप्टर शुरू किया है और वर्किंग्स ऑफ द माइंड को हम और अच्छे से समझ रहे हैं, है ना? जैसे कल डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने समझाया था इसमें कि सबकॉन्शियस माइंड कमांड्स पे चलता है, इन एग्जॉस्टिबल रिजर्वॉयर है, जो आप फीड कर रहे हो आप उसका रिजल्ट देखोगे। लोगों ने मिरेकल्स देखे हैं सबकॉन्शियस माइंड को, लेकिन इसमें भी धैर्य के साथ लगातार प्रोग्रामिंग करके, है ना? लगातार प्रोग्रामिंग करनी है। अगर आपने 3 दिन बहुत पॉजिटिवली प्रोग्रामिंग की, दैट आई गिव थैंक्स फॉर ऑल माई वेल्थ नाउ, सपोज आपने ये बोला 5 मिनट्स मॉर्निंग, 5 मिनट्स इवनिंग, बहुत डिलिजेंटली 3 दिन बोला, फोर्थ डे आपके इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया और वो बहुत ज्यादा ऐसा आ गया, है ना? और आप फिर से नेगेटिव लूप में चले गए, व्हाट इज दिस, इतना बिल आ गया, बिजली का डिपार्टमेंट ऐसा है, हाउ टू पे दैट मनी, अगेन बैक टू स्क्वायर वन। रादर पॉजिटिव से Rather, आप नेगेटिव चले जाओगे, है ना? वो आप नेगेटिव में चले जाओगे दैट वे। फिर से आपने 4 दिन बहुत अच्छा किया, फिर से एक दिन नेगेटिव हो गया, फिर से आप नेगेटिव लूप में चले जाओगे। तो अपनी फ्रीक्वेंसी पे भी ध्यान रखना होता है। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको लव एंड ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहना होता है। और इसीलिए डॉक्टर जोसेफ पर्फी ना एक एक सेंटेंस बोल देते हैं कि वेन एवर आप उस लूप में जाते हो, नेगेटिव लूप में, आपको डेलिबरेटली बोलना होता है, आई गिव थैंक्स फॉर ऑल माई वेल्थ नाउ, लव एंड पीस इज माइन नाउ, आई फील वेरी गुड, लाइक डेलिबरेटली करना पड़ेगा। बिकॉज उस एनर्जी में ड्वेल करोगे तो सारा जो किया हुआ है ना पिछले इतने दिनों का, वो फिर खराब हो जाता है। ओके, सो ये चीज का ध्यान रखना होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे एंड अनदर पर्सन फ्रॉम बैंगलोर, द ब्यूटीफुल पल्लवी पांडा विल बी रीडिंग फॉर अस। how the body portrays the workings of the mind. The interaction of your conscious and subconscious mind requires a similar interaction between the corresponding system of nerves. The cerebrospinal system is the organ of of the conscious mind, and the sympathetic system is the organ of the subconscious mind. The cerebrospinal system is the channel through which you receive conscious perception by means of your 5 physical senses and exercise control over the movement of your body. This system has its nerves in the brain, and it is the channel of your voli- voli- volitional, volitional and conscious mental वॉल्यूशनल, action. Volitional वॉल्यूशनल। and volitional and conscious mental action. The sympathetic system, sometimes referred to as the involuntary nervous system, as its center in the ganglionic mass at the back of the stomach, known as the solar plexus, and is sometimes spoken of as the abdominal brain. It is the channel of that mental action which unconsciously supports the vital functions of the body. The two systems may work separately or synchronously. Just George Thomas Troward says the vagus nerve passes out the cerebral region as a portion of the voluntary system, and through it we control the vocal organs. Then it passes onward to the thorax, sending out branches to the heart and lungs, finally passing through the diaphragm. It loses the outer coating, which distinguishes the nerves of the voluntary system, and becomes identified with those of the sympathetic system, so forming a connecting link between two and making the man physically a single entity. Similarly, different areas of the brain indicate their connection with the objective and subjective activities of the mind, respectively.
And speaking in a general way, we may assign the frontal portion of the brain to the former and posterior portion of the latter, while the intermediate portion partakes of the character of both. A rather simple way of looking at the mental and physical interaction is to realize that your conscious mind grasps an idea, which induces a corresponding vibration in your voluntary system of nerves. This is in turn causes a similar current to be generated in your involuntary system of nerves, thus handling the idea over to your subconscious mind, which is the creative medium. This is how your thoughts become things. Every thought entertained by your conscious mind and accepted as true is sent by your brain to your solar plexus, the brain of your subconscious mind, to be made into your flesh, and to be brought forth into your world as a reality. या ये बहुत The साइंस, पूरी साइंस समझाई है, 1 सेकेंड पहले भी। सो ये पूरी साइंस समझाई है, मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। दैट हमको ये पता है कि हम नर्वस सिस्टम को बोलते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारा है ना, पूरा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड नीचे जाती है। इसमें ये बताया हुआ है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो जो हमारा नेवल के अराउंड का एरिया है, मणिपुर चक्रा बोलते हैं हम उसको इन योगा, राइट। हमने ये मणिपुर चक्रा, जो साइंस ऑफ चक्रा होती है, मणिपुर चक्रा नेवल के जो पीछे वाला एरिया होता है, अ, उसको इंग्लिश में सोलर प्लेक्सस बोलते हैं। उस चक्रा को, मणिपुर चक्रा को सोलर प्लेक्सस बोलते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी हमेशा से समझाते थे कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड वहां पे ड्वेल करता है। सबकॉन्शियस माइंड तो डेफिनेटली एवरी सेल ऑफ योर बॉडी में है, बट उनका ये कहना होता है दैट पीछे हम, जस्ट इन द सोलर प्लेक्सस एरिया, हमारा सबकॉन्शियस माइंड और जो इंफॉर्मेशन हमारी जन्मों जन्मों से है, पता नहीं पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, वो हमारी सोलर प्लेक्सस यानी कि मणिपुर चक्रा के जस्ट पीछे होती है। ठीक है। तो मणिपुर चक्रा की डेफिनेटली, उसको हम साइंस में भी गट ब्रेन एक्सिस बोलते हैं। आपके ब्रेन में जो होता है, आपकी जो वेगस नर्व जो ब्रेन से चलती है, इट इज सो अमेजिंग फैक्ट दैट जो वेगस नर्व बॉडी की लॉन्गेस्ट नर्व होती है, वो स्टार्ट ही होती है क्राउन चक्रा से, है ना। क्राउन चक्रा से वो स्टार्ट होके, इट इज सो अमेजिंग दैट वो हमारे पूरे 7 चक्रास को टच करती है। वो एंड मूलाधार पे होती है, स्टार्ट क्राउन चक्रा से होती है। ये योगिक साइंस के बारे में है ना। और अगर हम साइंस के बारे में देखें, तो हमारे सारे जो लाइक बॉडी ऑर्गन्स हैं, डाइजेस्टिव कैनाल वाले, वो सारे इससे टच होते हैं और ब्रेन से लेकर नीचे तक हो जाती है। लेकिन सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक 2 तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं, वो हमारे नेवल पे भी मिलते हैं। तो हमारा नेवल का एरिया बहुत सिग्निफिकेंट होता है। इसीलिए हम, जब मैं आपको सुबह भी, जब आप एफर्मेशंस करते हैं ना, हम लोग साथ में प्रेस करते हैं अपनी, तो मैं आपको बोलती हूँ ना, नेवल को आप आगे पीछे होता हुआ देखिए। सो उसका बहुत ज्यादा पावर होता है, उससे आप वेगस नर्व को एक्टिवेट करते हो और आपकी मैनिफेस्टेटिव पावर्स बहुत बढ़ जाती हैं, है ना। बिकॉज हमारा वो पार्ट ऑफ द ब्रेन जो हमारे सारे चक्रों के साथ है, वो हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं और उनमें एनर्जी फ्लो शुरू हो जाता है, अगर हम उसको योगिक साइंस के हिसाब से देखें। और साइंटिफिक वे से भी अगर हम देखते हैं, तो हम अपने नेवल के पीछे वाला जो एरिया होता है ना, उसको हम सेकेंड ब्रेन बोलते हैं। हम वैसे भी उसको सेकेंड ब्रेन बोलते हैं। एंटेरिक नर्वस सिस्टम उसका नाम है। एंटेरिक मतलब, एंटेरिक का मतलब होता है इंटेस्टाइन। नर्वस सिस्टम पता ही है, जो ब्रेन में होता है। मतलब इंटेस्टाइन में भी एक नर्वस सिस्टम है हमारा, जिसको हम सेकेंड ब्रेन बोलते हैं, और वो सोलर प्लेक्सस के वहां पे होता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अपनी नेवल को, वेर एवर यू डू योर मेडिटेशन और वट एवर, फील दैट वो नेवल आपका आगे की तरफ जा रहा है और वो पीछे की तरफ आ रहा है, तो आपकी मैनिफेस्टेटिव पावर्स बढ़ जाती है। बिकॉज इन हिंदू मैथोलॉजी अगर हम देखें, तो उसमें चक्रास का फ्री फ्लो शुरू हो जाता है। इन योगिक साइंस हम इस तरह, इसीलिए मेडिटेशन की इंपॉर्टेंस होती है। इसीलिए आपकी पावर्स, अगर आप सिर्फ 3 गहरी लंबी सांसें एक दिन में लेते हैं, और दिन में अगर आप 5-6 बार ऐसे कर रहे हैं,
है ना। तो उससे आप देखोगे कि आप बहुत शांत होने लग जाओगे, बिकॉज आपका जो इन्फिनिट इंटेलिजेंस गॉड विद इन है वो एक्टिवेट होने लग जाता है। तो इसमें बहुत ज्यादा पावर होती है। तो ये अभी उस तरह से ही समझा रहे हैं, यू नो दैट ये सोलर प्लेक्सस होती है, वहां पे इंफॉर्मेशन होती है। इसीलिए जब हम एमएमबीजी में जैसे उसमें ना हम मेडिटेशंस कराते हैं तो हम सोलर प्लेक्सस पे बहुत ध्यान करवाते हैं। और मॉर्निंग में भी जब हम प्रेस करते हैं तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अपनी नेवल को आगे पीछे होता हुआ देखिए, उससे वेगस नर्व एक्टिवेट होती है। और वेगस नर्व में जब फायरिंग होती है, इसका मतलब होता है दैट आप स्लोली यू विल सी दैट आप बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर भी बनते जाते हो। सो इट इज सो ब्यूटिफुली डन। सो ये साइंस और योगिक साइंस का अमेलगमेशन है कि दोनों नर्वस सिस्टम आपके साथ में मिलते हैं, इसीलिए हम उसको गट ब्रेन एक्सिस भी बोलते हैं, है ना। और साइंस में हम उसको बहुत अलग तरीके से, हम एट पीएलसीसी आई जस्ट टेकन अ ह्यूज वेबिनार ऑन दिस टॉपिक फॉर अबाउट 2 to 3 hours, गट ब्रेन एक्सिस का। बट वो दूसरे तरीके से समझाया था। बट इसमें योगिक साइंस में डेफिनेटली वो सोलर प्लेक्सस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। और डॉक्टर जोसेफ मर्फी एक वो है राइटर जिन्होंने ये बताया है कि सबकॉन्शियस माइंड dwells देयर। सो बिकॉज उसकी एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंस होती है। सो बट यस, बाकी किताबों में डॉक्टर जो डिस्पेंजा, ये लोग न्यू एज ऑथर्स हैं, इन्होंने ये बताया कि सबकॉन्शियस माइंड और इन्फिनिट इंटेलिजेंस और गॉड लाइज विद इन एवरी सेल ऑफ योर बॉडी। हर एक कोशिका जो बॉडी की शरीर की होती है, 100 ट्रिलियन होती है, उन सब में इंटेलिजेंस होती है। So yes, we'll just read a bit of this and then हाँ जी, पल्लवी। There is an intelligence which takes care of the body. When you study the cellular system and the structure of the organs, such as eyes, ears, heart, liver, bladder, etc., you learn they you learn they consist of groups of cells which form a group of intelligence, whereby they function together and are able to take orders and carry them out in deductive function at the suggestion of the mastermind, that is, subconscious mind. A careful study of the single celled organisms shows you want you what goes on in your complex body. Though the monocellular organism has no organs, it still gives evidence of mind action and reaction performing the basic functions of the movement, align, alimentation, एलिमेंटेशन, assimilation, एलिमेंटेशन, या आप पढ़ो आगे। alimentation, assimilation, and elimination. Many say there is an intelligence which will take care of your body if you let it alone. That is true, but difficulty is that the conscious mind always interferes to the sway of the false beliefs, fears, and mere opinion. When fear, false beliefs, and negative patterns are made to register in your subconscious mind through physiological, emotional conditioning, there is no other course open to the subconscious mind except to act on the blueprint specifications offered it. या सो वेरी वेरी क्लियर दैट हमारी बॉडी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों माइंड होते हैं उसमें। कॉन्शियस माइंड जो हमारे 5 सेंसेस से गवर्नड है, सबकॉन्शियस माइंड जो इन्फिनिट इंटेलिजेंस, द गॉड विद इन जिसको बोलते हैं। सो इन्होंने बताया कि जो हमने बचपन में पढ़ा था ना, सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो थे, अमीबा एंड पैरामीशियम, पैरामीशियम जो स्लिपर शेप्ड होता है, अमीबा जिसके बहुत सारे टेंटिकल्स निकले हुए होते हैं, दे आर यूनिसेल्युलर, है ना, मोनोसेल्युलर जिसको बोलते हैं। तो उनमें भी इंटेलिजेंस होती है, वो भी तो एक्शन और रिएक्शन करते हैं, उनकी बॉडी में भी डाइजेशन होता है, उनकी बॉडी में सब कुछ होता है जो नॉर्मल पर्सन में होता है ना। न्यूक्लियस होता है जो मतलब जिसमें आप वो अनदर लाइफ को बर्थ दे सकते हैं, न्यूक्लियस होता है उसमें। उसमें सारी चीजें होती है, एलिमेंटेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, सब कुछ होता है उसमें जो नॉर्मल एक ह्यूमन बॉडी में हो रहा है, जो मल्टी सेल्यूलर है। हम तो मल्टी सेल्यूलर है, 100 ट्रिलियन सेल है वो भी हमारे,
है ना। तो वही सारी चीजें उस पर उस ऑर्गेनिज्म में भी होता है जो सिंगल सेल है। इसका मतलब है एक एक सेल में हमारे पास देर इज गॉड दैट रिसाइड्स, दैट इज दिस पावर, जिसको कॉस्मिक पावर आप बोलो, भगवान बोलो, इन्फिनिट इंटेलिजेंस बोलो, है ना। सब में उनका एक फ्लो होता है सिस्टम का, वो अपने तरीके से काम करती है। जैसे हमारी बॉडी में भी एक फ्लो है ना। जैसे ही हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है सपोज, सो हमारा टेम्परेचर राइज हो जाता है, इजंट इट। बॉडी टेम्परेचर राइज हो जाएगा, मे बी 99 हो जाएगा, 100 डिग्रीज हो जाएगा, मे बी उससे भी ज्यादा हो जाएगा। दैट मीन्स मे बी देर इज अ बैक्टीरियल या वायरल कुछ हमारी बॉडी के अंदर कोई ऐसा एंटीजन आया है जिसके अगेंस्ट। सो वो टेम्परेचर बढ़ने का मतलब ये होता है दैट बॉडी की मशीन बहुत जोर से काम कर रही है उस एंटीजन जो वायरस या आपकी बॉडी में बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रही है, अभी उसको मार के गिरा रही है। उस वक्त हमारा टेम्परेचर हाई रहेगा एंड आपका भूख खत्म हो जाएगा, है ना। लैक ऑफ एपिटाइट लगेगा। सो यू आर रनिंग अ टेम्परेचर राइट नाउ मे बी 100 डिग्रीज, 101 आपका टेम्परेचर, और आपको लग रहा है मुझे फीवर हो रहा है, बुखार हो रहा है, एंड वाइल एट द सेम टाइम आपकी एपिटाइट लॉस हो जाएगा। एपिटाइट लॉस होना बहुत जरूरी है, उस वक्त मत खाया करो, बिकॉज डाइजेशन में बहुत कैलोरीज वेस्ट होती हैं, है ना। तो वो वाली कैलोरीज को सेव करके, वो जो एनर्जी जो आपके डाइजेशन में होती उसको सेव करके एंटीबॉडी बनाने के लिए, क्योंकि कैलोरीज फाइनाइट सोर्स है। एक दिन में आप कितनी कैलोरी खा लोगे? 1000, 1500, राइट। 1500 कैलोरीज आप खा रहे हो। तो डाइजेशन टेक्स अवे लॉट ऑफ कैलोरीज। डाइजेशन के बाद बॉडी एकदम टायर्ड हो जाती है, लोगों को लंच करने के बाद नींद आ जाती है ना। सो बिकॉज डाइजेशन इज अ वेरी टायरिंग प्रोसेस फॉर द बॉडी। तो हमारी बॉडी उस कैलोरीज को सेव करके आप आपको लैक ऑफ एपेटाइट करती है, और वो जो डाइजेशन के लिए कैलोरीज जो यूज होनी थी, एनर्जी यूज होनी थी, उस एनर्जी से वो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बना रही है। और आपका बॉडी टेम्परेचर, जब तक कोई भी मशीन को अगर आप ओवर यूज करोगे तो वो गर्म हो जाती है ना। कोई भी मशीन, अगर आपका कार का इंजन भी अगर 6 आवर्स नॉन स्टॉप चल रहा है, योर कार इंजन इज गोइंग टू गेट वार्म, हॉट रादर, राइट, बहुत गर्म हो जाता है। वैसे ही हमारी बॉडी का भी इंजन जब बहुत जोर शोर से इट्स प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट वो वायरस या जो भी बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर बाहर से आया है, कोई पैथोजन, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेज हो जाता है। तो टेम्परेचर रेज होना अच्छी बात होती है। इट इज बॉडी का वो रिस्पॉन्स दैट योर बॉडी इज हीलिंग, ठीक है। और दूसरी चीज, लैक ऑफ एपिटाइट जब भी होती है, डोंट ईट। लैक ऑफ एपिटाइट मींस बॉडी इज हीलिंग इनसाइड, और वो आपकी डाइजेशन की एनर्जी लेके आपकी हीलिंग एनर्जी में लगा रही है ना। क्योंकि वो फाइनाइट सोर्स होता है, वी हैव ओनली सो मच, एक कटोरी कैलोरीज होती है हमारी बॉडी में बस। उसको या तो आप डाइजेशन के लिए यूज करो या हीलिंग के लिए यूज करो। तो कितनी अच्छी इंटेलिजेंट है ना बॉडी हमारी, कितने अच्छे से यूज करती है, हमारी बॉडी में सारे सिस्टम अपने आप चल रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप किसी मेडिकल, बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं हमारे इसमें सेशंस में, तो कभी भी किसी को वायरल फीवर होता है तो वो पहले ही बोल देते हैं कि विद मेडिसिन 7 डेज एंड विदाउट मेडिसिन 1 वीक। इसका मतलब है बॉडी अपने आप वैसे भी 7 दिन में बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, चाहे आप दवा लो चाहे ना लो, इजंट इट। मतलब कभी भी ऐसी कोई हर्ट होता है, कोई वुंड होता है, तो बोलते हैं इट विल टेक इट्स ओन कोर्स ऑफ हीलिंग, इट विल टेक अनदर 7 डेज और इट विल टेक अनदर 5 डेज टू हील, राइट। कोई भी ऐसी अगर चीज होती है, तो मेरे एक बार आइस के पास, पता नहीं, आई थिंक इट वाज अ स्पाइडर और समथिंग, सो आई वाज इन द जिम एंड वहां पे लाइक द होल वेरी सीनियर डॉक्टर्स फैमिली आल्सो कम, सो वी ऑल वर्क आउट टुगेदर, सो वो फ्रेंड्स ही हो गए थे। तो मैं उनको यही बोल रही थी कि मेरा यहाँ पे पूरा काला काला हो गया, तो मुझे बोलते हैं देखो छोड़ ही दो, नहीं तो नारियल का तेल लगा लो। अब आपको मैं क्या बोलूं कि क्या मेडिसिन लगाऊं? पेशेंट्स का तो हमको बताना पड़ता है दैट देव काम दे पेड टू अस, वी हैव टू गिव देम समथिंग टू पुट, बट यू डोंट पुट एनीथिंग, कोई जरूरत नहीं है, अपने आप ठीक हो जाएगा। बॉडी की अपनी इंटेलिजेंस होती है ना। ये चीज डॉक्टर जोसेफ मर्फी समझा रहे हैं कि ये हमारी जो नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस है, जो ऑलरेडी बॉडी के अंदर है, कॉन्शियस माइंड की सोच उसको इंटरफियर करती है। अब आप वरी, अगर वरी वाला सोच आ गया, है ना, कॉन्शियस माइंड विल वरी कि अरे फीवर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कुछ बैक्टीरियाज का ओरिजिन ऐसा होता है कि उनको सबके अपने अपने ना, मतलब दे हैव देयर ओन टाइम ऑफ गोइंग अप एंड देन कमिंग डाउन, जो मैं बहुत लेमैन की टर्म में अब समझा सकती हूँ। सारे वायरसेस का एक पीक टाइम होता है, सो वो 3 दिन बढ़ेंगे, अगर कई का सिर्फ एक दिन, 24 आवर्स वो पीक पे रहते हैं, उसके बाद वो अपने आप डिक्लाइन होने शुरू हो जाते हैं,
ठीक है। सो बॉडी अपने आप हैंडल करती है उन सबको। अच्छे से फ्लूइड्स पियो, फ्लूइड्स बहुत जरूरी होते हैं पीने, एंड रेस्ट जरूरी होता है। रेस्ट और फ्लूइड्स अच्छे से पियोगे तो अपने आप आपकी बॉडी में नेचुरल हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो वो यही बता रहे, लेकिन कॉन्शियस माइंड उसको इंटरफेयर करता है ना। वरी वाली फीलिंग आ गई, अब वो पूरी बॉडी में इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन की तरह, है ना, जैसे बहुत सारे वायर लगे हुए हैं, पट 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 पट, पूरी बॉडी वैसी कनेक्टेड होती है नर्वस सिस्टम से। उसमें वरी वाली फ्रीक्वेंसी पे आप वाइब्रेट कर रहे हो, तो वो नेचुरल हीलिंग प्रोसेस जो आपका होता है वो इंटरफियर होता है उससे। इसीलिए थॉट्स की इंपॉर्टेंस कम्स इनटू बीइंग, इनटू प्ले, दैट हमारे थॉट्स इतने इंपॉर्टेंट है, तो सो दैट वो अलाइंड रहें हमारी बॉडी की इन्फिनिट इंटेलिजेंस से। और ये तो हम मेडिकल, वो मतलब बॉडी की फिजिकल हीलिंग के बारे में बात कर रहे हैं, बट कोई भी चीज साइकोलॉजिकली हो या जो भी हो, जिस भी तरीके से, है ना, एक नॉर्मल रिदम होता है। सो बी इन रिदम, अपने थॉट्स को अलाइन करो, दैट थैंक यू दैट माई बॉडी इज कॉन्स्टेंटली हीलिंग, थैंक यू दैट माई इनकम इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। मत परेशान हो कि ये काम नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो यही बताने की इसमें कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बॉडी में सब कुछ मुमकिन है। अगर हमारे थॉट्स, हमारा कॉन्शियस माइंड भी अगर अगर अलाइन हो जाए ना, लाइफ वर्ड, इस चैप्टर का नाम यही था ना, सबकॉन्शियस माइंड ओनली वर्क्स लाइफ वर्ड, तो वो इसी को समझा रहे हैं साइंटिफिकली। लाइफ वर्ड का मतलब होता है सक्सेस, ग्रोथ, प्रोग्रेशन, लव, हीलिंग, है ना, हैप्पीनेस, हार्मनी, दैट इज वॉट इट इज। तो अगर हम अपनी बॉडी को नॉन स्टॉप ये बोलते रहेंगे दैट थैंक यू दैट माई बॉडी इज नेचुरली हीलिंग, थैंक यू टू ऑल माई सेल्स, थैंक यू टू माई ऑर्गन्स, थैंक यू टू माई बोन्स, थैंक यू टू ऑल माई नर्व्स, थैंक यू टू द लिगामेंट्स, थैंक यू टू द कार्टिलेजेस, राइट। अगर आप लगातार ऐसे बोलते रहोगे, यू विल सी दैट आप अब अलाइनमेंट में हो। जो आपका सबकॉन्शियस माइंड था, जो लाइफ वर्ड है, जो भी एक्टिव है आपकी बॉडी में, है ना, अब आपने कॉन्शियस माइंड में भी उस एनर्जी को आप वो लेके आ गए, तो अब सब कॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड टैंडम में है, अलाइनमेंट में है। लेकिन अगर फियर, वरी नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं, ये कैसे कर दिया, वो कैसे हो गया, दिस इज रॉन्ग, डॉक्टर्स आर यूजलेस, दिस इज देयर, ये नहीं कर सकते, इतना टाइम लगाते हैं, देयर यू हैव लॉस्ट इट नाउ। ओके, देयर यू हैव लॉस्ट इट। यू हैव टू अप्रिशिएट, जैसे हमने देखा था ना डॉक्टर जोसेफ मर्फी के उसमें, जो उन्होंने अपनी बहन के लिए किया था क्योंकि वो बहुत एंजाइटी में थी। और एक और एग्जाम्पल देखा था मदर एंड डॉटर का, व्हेन शी कॉन्स्टेंटली केप्ट मेंशनिंग every god flows through every doctor touching my mother's body. Every tool has presence of god, infinite intelligence is that. Every tool, every medication, every liquid, what is injected, everything was godly, right? So इस तरह से ये गॉड वर्डली प्रेयर्स हैं, लाइफ वर्ड प्रेयर्स बोलते हैं। अब ये अलाइनमेंट में है हीलिंग के, हीलिंग और मिराकुलस रिकवरी की। तो अगर इस तरह से हम उस लेवल पे आएंगे, अपनी एनर्जी को हम हाई करके रखेंगे, बीइंग इन लव एंड ग्रैटिट्यूड एंड दैट बिलीफ इन गॉड दैट आई नो एवरीथिंग विल बी ओके, बॉडी हील्स लाइक अ मिरेकल। बॉडी होती ही हीलिंग के लिए, ठीक है, सारे सिस्टम्स उसमें है। वो पावर बुक में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था ना, हीलिंग वाला जो चैप्टर था। सो इट इज सो ब्यूटिफुली डन, ऑर्केस्ट्रेटेड, एवरीथिंग। बस उसको करेक्ट राइट फूड दो, राइट फूड दो, राइट फ्लूइड्स दो, राइट थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम थॉट्स की बात कर रहे हैं। अपने थॉट से, कॉन्शियस थॉट से आप इंटरफियर कर सकते हो नेचुरल हीलिंग प्रोसेस को, एंड वी हैव टू बी वेरी माइंडफुल। और ये तो चलो ये वाली हीलिंग है, बट वेल्थ में भी यही है, ठीक है, और बाकी चीजों में भी यही है, रिलेशनशिप में भी इसी तरह से हीलिंग होती है, और आपकी ग्रोथ एंड सक्सेस लाइफ में भी हीलिंग होती है। कॉन्शियस माइंड इंटरफेयर करता है, कॉन्शियस माइंड को थोड़ा कंट्रोल में रखने की जरूरत है, उसके थ्रू अच्छे लाइफ वर्ड चीजें, दैट थैंक यू फॉर माई ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। जो सारे प्रेयर्स हम अर्ली मॉर्निंग में 6 o'clock करते हैं, व्हेन वी स्टार्ट द सेशंस, यूज द सेम प्रेयर्स थ्रू आउट इन योर लाइफ, है ना। वो सारी चीजें उसमें, रिलेशनशिप कवर कर लिया हमने, हमने लाइफ के चारों पिलर्स कवर कर लिया, राइट। हमने हेल्थ को, थैंक यू फॉर माई रोबस्ट हेल्थ एंड अ स्ट्रांग बॉडी, सो इफ यू स्ट्रांग बॉडी यू आर गोना हैव अ स्ट्रांग इम्यूनिटी, राइट। सो वो हमने कवर कर लिया। हमने दूसरी चीज रिलेशनशिप्स को, ऑल माई रिलेशनशिप्स आर जॉयफुल एंड फुलफिलिंग, है ना। सबसे बड़ी चीज होती है पीस। अगर दिल में, बॉडी में पीस है, बहुत, आप कॉन्शियस सबकॉन्शियस आपका बिल्कुल अमेलगमेटेड रहेगा,
आई एम एट पीस विथ माई सेल्फ एंड विद द होल वर्ल्ड। सो वो भी हमने कर लिया, है ना। हमने पैसे, माई वर्क, जो करियर है, हम सबका कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम है, फैमिली बिजनेस है, इंडिविजुअल बिजनेस है, जॉब्स है। सो माई वर्क इज थ्राइविंग एंड फ्लरिशिंग, वो हमने कर लिया, है ना। तो हमने चारों एरियाज जिंदगी के कवर कर लिए। दैट थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव, पैसे को भी हमने खुश कर दिया। तो अब हम अलाइनमेंट में हैं। इसके अलावा भी हम बहुत प्रेस करते हैं, है ना, दैट आई एम कॉन्स्टेंटली अट्रैक्टिंग वेल्थ, सक्सेस एंड प्रोस्पेरिटी, ये वो भी हमने कर लिया। तो हम अगर उसी जोन में रहेंगे तो हमारा थॉट प्रोसेस लाइफ वर्ड है। लाइफ वर्ड है मतलब ग्रोथ एंड प्रोग्रेशन की तरफ है। आप जिंदगी में कभी फेल नहीं होगे, मैं गारंटी दे सकती हूँ आपको, अगर इस तरह से। सो कॉन्शियस सबकॉन्शियस को अलाइनमेंट, कॉन्शियस माइंड थोड़ा तितर बितर होता रहता है, वो इधर जाएगा उधर जाएगा, और ये उसने ऐसे कर दिया, दिस इज रॉन्ग, दिस शुड नॉट हैव गॉट डन, यू नो दिस इज सो दिस थिंग एंड दिस इज सो, द वेदर इज सो बैड, दिस इज लाइक दैट, है ना। ऐसे थोड़ी बोलना होता है कि वाई द वेदर इज सो बैड। अगर मैं गई गुलमर्ग और वहां स्नोफॉल हो रहा है तो मुझे बड़ा मजा आ रहा था, है ना। तो मैंने सन के भी दर्शन कर दिए, मैंने कहा चलो इसी बीच अब मुझे ब्लेस भी करो आप, आपने मुझे वो दिखाया जो मैं वाकई देखने के लिए आई थी ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली, है ना। मुझे बस यही देखना था, बर्फ की बारिश मेरे ऊपर हो रही है इतनी जोर जोर से। सो यही देखने आई थी, मैंने कहा आप अपने भी दर्शन करा दो, बिकॉज मुझे पता है आपको एविडेंस चाहिए मुझे अभी, है ना। हर चीज का एविडेंस मांग लो। सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स ऑन कमांड्स, हील माई बॉडी नाउ, यस आई गिव थैंक्स फॉर इट, ऐसे करके बात कर लिया करो, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये लाइफ वर्ड प्रेस, इसका मतलब है कॉन्शियसली हम कुछ सेंटेंसेस चूज कर रहे हैं जो स्ट्रांगली लाइफ वर्ड है, जो गॉड की फ्रीक्वेंसी से मैच करते हैं, ठीक है। फिर वो अपने आप जब ये दोनों साथ में आते हैं, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड, आपकी लाइफ इज गोइंग टू बी ब्यूटिफुल, और ये सारी चीजें आप होता हुआ देखोगे अपनी जिंदगी में। हीलिंग विल एक्सपीडाइट, है ना, हीलिंग का प्रोसेस हेसन अप हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, आपके रिलेशनशिप्स मेंड होना शुरू हो जाएंगे, आप अपने आप से कनेक्टेड होगे, सबसे बड़ी चीज, क्योंकि आप बहुत पीस में रहोगे। फिर एक्सपेक्टेशन भी लोगों से नहीं रहेगी जो हमको लगता है वो हमारे लिए कर दे, ये हमारे लिए कर दे, ठीक है जी कर दे तो बहुत बढ़िया, हम केपेबल है हर चीज के लिए, ना करे तो भी बहुत बढ़िया, है ना। सो दैट इज हाउ लाइफ इज। तो ये हमने आज सीखा है, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू पल्लवी फॉर रीडिंग सो ब्यूटिफुल।